प्रैक्टिकल कल है आपका कि परसों है? कल है, ठीक है। हाँ चलिए, वी वर डूइंग ग्रेविटेशन, वी हैड डन Newton's law of gravitation, its importance, its formula, everything we have done. Now we are going to start with acceleration due to gravity, the next thing. कौन सा चौक ले आए हो? कहाँ से लाए हो चौक ये वाले? वही ठीक है। So the symbol is small g, and since now you are science students, you are in +1, आपको पता है कि ये gravity नहीं है, ये acceleration due to gravity, ठीक है? Small g is acceleration due to gravity, right? Suppose I throw this piece of chalk freely, with what acceleration it will fall downwards? 9.8 meter per second square from earth, है ना? अगर मैं मून पे होती तो कितनी एक्सेलरेशन से गिरता? 1/6 of that on earth, 1.63 meter per second square on moon. और if I have a crumpled ball, ठीक है, उसको मैं गिराती, वो कितनी एक्सेलरेशन से फॉल करता? अगेन 9.8. एक कॉइन होता तो वो भी 9. So all the objects, they fall at the same rate. All the objects falling freely, they fall with g. They fall with acceleration due to gravity from a particular planet, right? If we go on another planet, then it will be different, but for one particular planet, we allow any object to fall towards the center of earth, it will fall with acceleration due to gravity, right? So it is the constant downward acceleration with which an object falls downwards. How do we define acceleration due to gravity? This is constant downward acceleration with which an object falls towards the center of earth. Actually वो कहाँ जा रही है? वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. Earth is pulling that object towards it due to gravitation, due to the force of attraction. तो उस acceleration से वो downward fall करेगी. Write the definition of acceleration due to gravity then. It's the constant downward acceleration. It is the constant downward acceleration with which an object falls freely towards the center of earth. Towards the center of earth. ये डाउनवर्ड कहाँ जा रही है? सरफेस की तरफ थोड़ी जा रही है. सरफेस तो बीच में आ गया, अदरवाइज ये अर्थ के सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना? So have you heard about Galileo Galilei's coin and feather experiment? चलो कौन बताएगा what that experiment is about and what did he notice? वैक्यूम में से उसने जब गिराया तो सेम टाइम पे नीचे पहुंच गए. बट अदरवाइज इफ वी डू द सेम एक्टिविटी हेयर इन द क्लास, कि अगर हम एक प्लास्टिक बॉल ले लें या कॉइन ले लें इवन, और दूसरी साइड पे एक पेपर की बॉल ले लें, ठीक है, तो दोनों को अगर हम गिराएं तो पहले कौन गिरेगा नीचे? मतलब एक पेपर है सच, एक क्रम्पल्ड बॉल है, दोनों में से कौन नीचे गिरेगा पहले? ऑब्वियसली क्रम्पल्ड बॉल गिरेगी, ठीक है, पेपर बाद में गिरेगा. तो पीपल थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉइन एंड फेदर एक्सपेरिमेंट में कॉइन इज रीचिंग द ग्राउंड फर्स्ट, फेदर इन द एंड, बिकॉज ऑफ देयर मास.
उन्होंने पहले यही सोचा कि कॉइन हैवियर है इसलिए वो पहले पहुंच रहा है. दैट मीन्स acceleration due to gravity is directly proportional to mass of the object that is falling. But later on, when he performed the same experiment through vacuum, both reached at the same time. So that means acceleration due to gravity does not depend upon mass of falling body, though it depends upon mass of planet from which it is being allowed to fall. It is not dependent upon mass of body that is falling. तो फिर क्यों ऐसे हो रहा था? Why coin was reaching first and why feather was reaching later? Reason was air resistance. Because of more surface area of the feather, it was experiencing more friction due to air resistance. And because of that, it was having slower motion. It was reaching late because of that. But the coin, because of smaller area, was experiencing lesser frictional force due to air, and it was reaching first. Otherwise, it has nothing to do with mass. Acceleration due to gravity does not depend upon mass of falling object. तो अब हम ले रहे हैं surface of earth. This is center of earth, radius of earth. We are taking a point A on the surface of earth where a stone of mass small m kg is lying. तो एक stone पड़ा simply earth के surface पे पड़ा हुआ. Its mass is m. Mass of earth is capital M. Radius of earth we have already written capital R. So what is the distance between center of that stone and center of earth? That is R. Okay. So let us write according to Newton's law of gravitation, gravitational force between stone and earth. According to Newton's law of gravitation, gravitational force between earth and stone will be gmm by r square. This is equation number 1. Clear है ये step? Now in first unit हमने mass की measurement of mass को detail में पढ़ा था, and we also studied the difference between mass and weight. That mass and weight are two different entities, right? Mass is scalar, weight is a vector. Mass is quantity of matter contained in an object, weight is gravitational force acting on an object. So do you remember? Weight की definition क्या थी? Gravitational force acting on an object. ये क्या है? This is also gravitational force. तो अगर हमने पहले इसका F symbol use कर लिया है, so let us use F symbol for weight also for this article only. Otherwise we use W is equal to mg. यहाँ पे हम लिखेंगे F is equal to mg. So where is the weight acting? It is acting towards the center of earth. By definition of weight, so by definition of weight, W is equal to mg के place में I am writing F is equal to mg because I am telling you कि weight होता है gravitational force ही तो होता है और already हम उसको लिख ही चुके हैं. This is also gravitational force. So let us use one symbol for it. Let's not use W here in this article. Comparing 1 and 2, left hand side is same, right hand side should also be the same. So equating their right hand sides, mg is equal to gmm by r square. We get the formula for acceleration due to gravity. So the formula for acceleration due to gravity is gm upon r square. So you can see from the formula, it depends upon mass of planet, radius of planet, but not upon mass of object. Stone का जो mass था वो eliminate हो गया यहाँ से. So that means it does not depend upon mass of falling object. So Galileo, he inferred from his experiment that all the objects fall at the same rate. So ये हो गया formula. By putting in the values for mass and radius of any planet, we can calculate its acceleration due to gravity. So very commonly we calculate it for Earth and Moon. ये दो example हम सबसे ज़्यादा discuss करते हैं. So let us calculate value of small g for Earth.
Let's put in the value because we know the mass of earth, we know the radius of earth. कौन बताएगा? ये वैल्यूज हम बहुत बार कर चुके हैं. मास ऑफ अर्थ पता है किसी को? kg, yes. And radius of earth 6400 किलोमीटर. उसको मीटर में कर दो. ठीक है. रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 kilometers and mass of earth is 6 into 10 raised to 24 kg. So on solving, करो solve. 6 7 7 ऐसे जो मर्जी करो. स्क्वायर करना, स्क्वायर करना है. तो ये आएगा आपका 9.8 आ जाएगी. बट यू प्लीज वेरीफाई दिस. सो विद यूनिट वी राइट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंस दिस इज एन एक्सेलरेशन, यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. तो हम तो इसका एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं. वहां पे भी 9 पॉइंट कुछ आया था. आपकी वैल्यू आपको पता है. But there are some factors because of which we are not getting exact value because of some random errors. We are not getting the accurate value. ठीक है. अगर मून पे कैलकुलेट करें, it is 1/6. So on moon, if if I keep one step here on earth, I'll go 6 times higher on moon. So G is 6 times less. Its value is 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अर्थ और मून की बस थोड़ी सी माइंड में रख लो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विद व्हिच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज. आपने डिफरेंस किए थे 9th में, याद है आपको? स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में. एक तो आपका डेफिनेशन का हो गया, देन यूनिट का डिफरेंस हो गया, फिर ये वेरी करती है, कैपिटल जी कांस्टेंट रहता है, ये डिफरेंस हो गया, है ना? कौन कौन से फैक्टर्स के साथ ये जीरो हो सकती है, कैपिटल जी जीरो नहीं हो सकता? कैन स्मॉल जी बी जीरो? कैन यू मेंशन एनी प्लेस वेयर इट इज जीरो? स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, वेयर डू वी एक्सपीरियंस? ड्यूरिंग फ्री फॉल, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और इन स्पेस. आप कुछ एग्जांपल कह सकते हैं जहां पे वेटलेसनेस की स्टेट होती है. सो यू मस्ट हैव सीन द एस्ट्रोनॉट्स पिक्स. In the spaceships, they are flying, they are floating because of absence of gravity. Yes. स्पेस में कह सकते हो, वही हो गया. फ्री फॉल में क्या होता है? आई गिव यू वन एग्जांपल. सपोज देयर इज अ थीफ विद अ बैग ऑन हिज बैक. ठीक है. ही जंप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस. ड्यूरिंग फ्री फॉल, when means till the time he is in the air, will he experience the weight of bag on his back? नहीं एक्सपीरियंस करेगा. तो यहाँ पे जी जीरो नहीं है. बैग की जी भी 9.8 है, उस थीफ की जी भी 9.8 है, बट वो जो नेट उसको एक्सपीरियंस हो रहा है वो जीरो का हो रहा है. तो ये नेट वर्ड वहां पे आ जाएगा. अदरवाइज ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम खुद कह रहे हैं वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो जीरो नहीं है, पर वो जो नेट इफेक्ट है उसका वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगा, लाइक दैट. ठीक है. हाँ. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद वेरियस फैक्टर्स. देयर आर 4 फैक्टर्स बेसिकली जो हम डिस्कस करते हैं. वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, हाइट, with depth, with latitude, with shape of earth, latitude means rotation of earth, due to rotation. So these are some factors with which small g varies. But syllabus में first 2 factors ही रह गए, वो जो आपने 9th में भी किए हैं, वही 2 डेरिवेशन.
द डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम परसेंटेज एरर भी निकालेंगे, बाकी सेम ही। लैटिट्यूड का मतलब एंगल दैट अ प्लेस मेक्स विद इक्वेटर ऑन अर्थ। सो एज द अर्थ इज रोटेटिंग, लैटिट्यूड इज चेंजिंग, तो उसकी वजह से भी जी चेंज होती है, तो मतलब कि रोटेशन का फैक्टर हो गया। और शेप ऑफ अर्थ यू नो इट्स नॉट स्फेरिकल एग्जैक्टली, ठीक है, तो थोड़ा सा वो ऑरेंज शेप्ड है, तो ये इक्वेटोरियल रेडियस इज मोर देन पोलर रेडियस, उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बट ये दो हम डिटेल में नहीं करेंगे। लेट अस डू फर्स्ट फैक्टर, वेरिएशन इन स्मॉल जी विद ऑल्टीट्यूड, विद हाइट। This is Earth. We are taking a point again on the surface of Earth, and we know कि यहाँ पे acceleration due to gravity है g. So at point A, acceleration due to gravity is gm upon r square. ये अभी हमने डिराइव किया, वो हमें पता है फॉर्मूला। There are so many examples of variation in g with height. For example, a simple pendulum is there, right? तो उसमें g का फैक्टर तो विजिबल ही है। Time period of simple pendulum is 2 pi root L by g. So if there will be change in g, time period will be changing. So we will get to know that this is because of the change in value of g only. So at the hills and at the hills and at the plains, there will be some difference in the time period shown by the same simple pendulum. And also if a pendulum clock we are carrying to the hills, g will decrease there, and that's why time period will increase. It will run a little slower there. तो हिल्स पे जो पेंडुलम क्लॉक है थोड़ी सी स्लो रन करेगी एज कंपेयर टू दैट ऑन द प्लेन्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बुक्स में देखोगे, व्हाइल गोइंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम शोन बाय सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है। केसेस इन लिफ्ट के बेस पे हैं कि आप एक सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में लेके जा रहे हो, तो वहां पे क्या चेंज होगा टाइम पीरियड में, लाइक दैट। So there are so many conceptuals based on this logic, right? तो चलिए अब एक पॉइंट ले लेते हैं, हाइट h from the surface of earth. We want to find acceleration due to gravity there. So let us call that acceleration due to gravity g dash. तो at point B, इसी इक्वेशन को रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ पे g को क्या लिखेंगे, g डैश। g तो कांस्टेंट होता है, मास भी वही है, अब रेडियस डिस्टेंस चेंज हो गई। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, आर प्लस एच। तो आर स्क्वायर के प्लेस में वील राइट आर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड जी डैश ओवर जी इज आर स्क्वायर, आर ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला था, आपने 9th में किया था, ठीक है ना, याद है आपको। दिस फॉर्मूला वाज देयर, एंड बिकॉज आर स्क्वायर इज लेस देन आर प्लस एच स्क्वायर ऑब्वियसली, देयरफॉर जी डैश वाज लेस देन जी। तो यहां से हमने कंक्लूड किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, हाइट के साथ डिक्रीज होती है। उसमें तो वो होता है ना आपके पास पैराशूट टाइप जो स्ट्रक्चर है। वहां कम है ना, कम तो वहां था ना, उस हाइट पे कम था। हाँ
ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट। और इस फॉर्मूला के बेस पे भी आपने न्यूमेरिकल्स किए थे 9th क्लास में, याद है? एक लिखो उस टाइप का। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, at what height from the surface of earth acceleration due to gravity reduces to 1/8 of its value, reduces to 1/8 of its value on the surface of earth, 1/8 of its value on the surface of earth। ठीक है, तो यहाँ पे g डैश कितनी दी हुई है? g/8। पुट इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? इन्वर्ट कर दिया, r प्लस एच ओवर आर स्क्वायर हो गया 8, g डैश को g/8 सब्स्टिट्यूट किया, g कैंसल, देन इन्वर्ट कर दिया, वो स्क्वायर उधर अंडर रूट हो गया। देखो कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो आगे तो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। इफ यू वांट आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ वही मैं कह रही हूँ, अगर आपने सॉल्व करना है तो आगे भी कर सकते हो। आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये आपकी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी इफ यू वांट टू सॉल्व, अदरवाइज आप रूट तक भी छोड़ सकते हो। So this way you can find that height। और अगर हाइट गिवन है तो जी निकाल सकते हो कि कितनी रिड्यूस हुई। तो ये तो था 9th का कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल गो अ लिटिल हायर हियर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आल्सो। पहले ये नोट कर लो। ये था ना, अगर यहाँ से r कॉमन लो ब्रैकेट में तो स्क्वायर हो जाएगा ना उसका, और 1 प्लस एच बाई आर। इज दिस क्लियर? कैसे आया? r कॉमन लिया तो r से डिवाइड हो गया, ये दिस गेट्स कैंसल्ड एंड वी कैन राइट g डैश अपॉन g इज 1 plus h over r raised to power minus 2. Now to open this we'll be using binomial theorem. But first we have to check 1 plus x raised to power n, x is less than 1 or not। ठीक है, तो पहले ये चेक करते हैं ये लेस देन 1 की नहीं है। हाइट इज लेस देन r, ये हाइट अर्थ के रेडियस से तो कम ही है। So h over r is less than 1, so binomial theorem is applicable। ये हमें हमेशा चेक करना होता है 1 plus x raised पर n में x less than 1 है कि नहीं है, वो 1 plus फॉर्म होनी चाहिए, then binomial theorem is applicable। ठीक है, so applying binomial, ये बस पावर यहाँ आ जाएगी, 1 plus x raised पर n is 1 plus n x minus 2। हाइट थोड़ी चाहिए, हम तो जी निकाल रहे हैं, जी डैश निकाल रहे हैं ना। दैट वाज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।
हाँ वो तो दिख ही इतना थोड़ी हम ऊपर चले जाएंगे अर्थ के रेडियस जितना। अर्थ इज सो वास्ट, उसका रेडियस कितना ज्यादा है, इतनी ऊपर कहाँ पॉइंट ले लेंगे हम, है ना। एच इज लेस देन 1, मच लेस देन 1। तो अप्लाई करिए जी डैश ओवर जी, 1 प्लस यहाँ एन आ गया एच ओवर आर। So G dash is 1 minus 2h over R into G. So this is your G dash. अब ये यूज करोगे आप फॉर्म। So 1 minus 2h over R into G. Is it greater than G or less than G? G dash. G dash is greater or less? हाँ कैसे पता लगेगा? On opening the bracket. Bracket open कर लो, G minus something आ जाएगा. So it is less than G. Again you can reflect from here that G dash is less than G. Yes, acceleration due to gravity is decreasing. Okay, and same expression we can write if we multiply both sides by m, then this becomes true for weight also. अगर G decrease हो रही है तो weight also is decreasing. ठीक है, so दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई कर दो, weight के लिए भी सेम इक्वेशन आ जाएगी आपको। Got this? Any doubt? हाँ ये यूजिंग बायनोमियल, ये आप कब यूज करोगे? जब हाइट काफी कम है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट अगर ज्यादा है, जैसे 1/3 है, 2/3 है, 1/8 है, अभी हमने किया जी इतना का है, तब हम हाइट के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। बट जब हमारी हाइट काफी लेस है रेडियस से, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बाइनोमियल तभी एप्लीकेबल है ना जब h लेस देन आर होगी। अगर h लेस देन आर ज्यादा नहीं है, हाफ है या जो भी है, तो फिर आप वो पहले वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, चलिए परसेंटेज डिक्रीज, तो वी सेड दैट g इज डिक्रीजिंग। लेट्स फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g। कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर? डेल्टा g बाय g इंटू 100। So this is g minus g dash minus g over g into 100. Let's put in the value g dash 1 minus 2h over r into g. चलो सॉल्व करो, क्या आएगा? Isn't it minus 2h by r into minus 2h by r into 100? So percentage decrease in the value of g with height is through this factor, minus 2h by r into 100. We can find percentage decrease also this way. ठीक है, तो ये था वेरिएशन विद हाइट ऑल्टीट्यूड। देन नेक्स्ट इज वेरिएशन विद डेप्थ। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। लाइक वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, अगर हम अर्थ के ऊपर गए तो डिक्रीज हो रही है, अब हम अर्थ के इंटीरियर में जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। नाउ व्हाट विल हैपन टू जी, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, पता ही है आपको, 9th में किया हुआ है आपने। फॉर्मूला याद है क्या था? हाँ, जी डैश इज जी इंटू 1 माइनस डी ओवर आर। तो वो अगेन इट वाज डिक्रीजिंग, सो दैट मींस ऑन द सरफेस इट इज मैक्सिमम। सरफेस पे g मैक्सिमम है, वेदर वी गो अप वेदर वी गो डाउन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीज ओनली। वैसे भी ये जो फॉर्मूला था आपने इसमें देखा कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। So this distance, whether we go above or below, distance is increasing both ways.
तो इसलिए जी दोनों केसेस में डिक्रीज ही हो रही है। फाइन, चलिए so we are taking now interior of earth. This is a point again on surface where g is acceleration due to gravity is g. So at point A, g is gm upon r square. But earth is a sphere of uniform charge, uniform density, you can say. So when we are going in the interior of earth, density of earth also matters. जब हम एयर में जा रहे थे उसकी डेंसिटी 1 kg/m³ होती है, तो वो हमें अकाउंट में नहीं लेनी पड़ी. But when we are going inside, there are rocks, etc., of large, you can say density. So we can't ignore the density of earth. तो हमें अब ये एक्सप्रेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ. तो पहले तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है. हाउ कैन वी राइट मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ? अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, its volume will be 4/3 pi r cube. ठीक है. So put this m here, put this m there. हमारा ये g का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगा, फिर उसको फर्दर हम यूज करेंगे, ठीक है. सो g is g/r² into m, 4/3 pi r cube rho. 2 r's get cancelled, एक रह गया, 4/3 pi g r rho. This is equation number 2. Now this is our desired expression. दूसरा पॉइंट लेने से पहले हमने g को मॉडिफाई किया. तो देखो यहां तक स्टेप्स क्लियर हैं? एनी डाउट? क्लियर? चलिए अब हम डेप्थ के यहाँ पे हैं, मैं इस टाइम यहाँ पे हूँ. तो आई एम गोइंग इन द इंटीरियर. सपोज मैं यहाँ पहुंच गई. सो लेट अस टेक अ पॉइंट बी हियर. तो डेप्थ फ्रॉम द सरफेस लेनी है आपको डी हो. तो बी पॉइंट पे हमने देखना है कि हाउ मच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चलो कल करते हैं इसको, कंटिन्यू.